हाँ, maybe in some case it can be 15 or 12, but no, generally it is 10, 10, 10 because of maybe lack of questions in other. तो किसी और में से आ सकते हैं। जी बिल्कुल, this is the general framework, but additionally suppose some chapter has very few, I would say, lines of syllabus, so maybe some questions in other chapter can maybe use for assistance to that particular chapter, but not much. Major has to be from the respective chapter only. Anyways, so those who are here have got an idea of the paper pattern as well. Now the heading for today is block diagram of wired communication system. This is the first heading that we are covering today. ठीक है? So इस ब्लॉक डायग्राम हमने कम्युनिकेशन सिस्टम की कल बात की थी। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम्स is a subject that deals with different methods, different mediums and different modules that are used for communicating between two devices, which can be physically close or physically separated, or I would say which can be connected through a wire or which can be wirelessly connected. Accordingly, we have two types of or two block diagrams for this communication systems. Basic block diagram of wired communication system and block diagram of a wireless communication. Basic modules will remain same, only just few modules are added to a wireless communication system because the processes, suppose the first one, in information source has to be there for both the cases. उसमें भी कोई source होना चाहिए, इसमें भी कोई source होना चाहिए. Second, input transducer. For example, मैंने आपको mic की example दी. Last time we speak in a mic. That mic is a transducer that converts your voice, say for example, into some signal, electrical signal. That is given to a communication system. Your stereo or your music system is in a way a part of communication system, I would say. Now, suppose the stereo has a wireless connection. It is sending data from here to admin. So this will be a transmitter, and the one at the admin will be a receiver. So this transducer will convert this voice or this analog signal into some electrical signal, which is given to the transmitter. Here this transmitter is your stereo. या मैंने कोई अगर कहा कोई communication system है या FM station generation system, आपने अगर देखा होगा आपकी गाड़ी में भी लगता है वो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें आप और आपकी गाड़ी में लगता है एक छोटा सा बॉक्स, उसमें आप पेन ड्राइव लगाते हैं एंड वो क्या करता है जो भी कुछ होता है डेटा और whatever audio content is there, it converts that into a radio station and आप अपने रेडियो पे ट्यून करते हो some frequency 87.5 86 करते हैं ये है वो क्या हम कहते हैं उस डिवाइस को क्या हम कहते हैं एक छोटा सा डिवाइस होता है हाँ you're right again no you're right हाँ modulator we call that as modulator आइडियली वही हमें पढ़ना है दैट इज मॉड्यूलेशन क्या होता है वही हमें पढ़ना है उस छोटे से डिवाइस में जिसमें पेन ड्राइव लगती है ना वो उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं मॉड्यूलेटर बेसिकली कन्वर्ट्स दैट सिग्नल दैट ऑडियो सिग्नल इनटू अ काइंड ऑफ अ रेडियो स्टेशन और अ रेडियो सिग्नल एंड ट्रांसमिट्स दैट इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी के नजदीक कोई और दूसरी गाड़ी भी इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेगी ना वो उसको भी यही स्टेशन चलाएगा ठीक है आपको समझ आया So that is what a modulator does. It converts your information and transmits that to the server. But that is a wireless way of sending data. Frequency modulation. हाँ, frequency modulation. ये आपने कहाँ से पढ़ा? FM का मतलब है ना frequency. हाँ, सही. AM लेकिन AM कहाँ से पता है आपको FM modulation? सर FM में दोनों चीजें होती है ना उसमें. नहीं. FM जैसे आपके रेडियो स्टेशन है. अच्छा 12th में भी था. अच्छा ठीक. जैसे आपकी रेडियो स्टेशन होते हैं AM और FM सुना सर AM actually stands for amplitude modulated station or amplitude modulated FM stands for frequency modulated station but anyways here when I talk about these this so coming to the first part that is the information source as we know a communication system the aim of this is to send some information so there has to be some information source. Now this can be in the form of words or codes or symbols or images, ठीक है? Depending upon which type of communication system you have, accordingly आपका information source vary होगा. I gave you an example of voice. Now at times it can be an image. You are sending
an image to the gate, ये जी valid person है, आज यहाँ पे CM का visit हो रहा है, खाली ये है valid ID cards, इनको enter कीजिएगा. So you are sending images from this office to the main gate, so the information source can change. Transducer again, that it's a device which converts one form of energy into another, तो तभी इसका नाम है transducer. So input transducer is one of the important components that converts your information into some meaningful signals for further processing and transmission. ठीक? जैसे से एग्जाम्पल दिए, for example in case of radio broadcasting, a microphone converts the information or message which is in the form of sound waves into electrical signals. Now the transmitter, as already said, it is used for broadcasting purposes. Now this transmitter, based on the transmitter, we यही actually classify करता है into two methods, that is wired and wireless. Transmitter से अगर receiver की तरफ, eyes on board please, transmitter से अगर receiver की तरफ एक wire जाती है, एक physical wire, this will be a wired communication. अगर ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेशन हो रही है या मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, वो ट्रांसमिट करता है थ्रू एयर, इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन. सीधी सी बात है, जब मॉड्यूलेटर एक साइड से लगा है, दूसरे साइड से डीमॉड्यूलेटर होना चाहिए. ठीक है, दूसरे साइड से क्या होना चाहिए? डीमॉड्यूलेटर. डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होगा, आप बताओ? डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होगा? मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल को वापस कन्वर्ट करना इनटू द मैसेज सिग्नल. ठीक है, सो देयर वाज अ मैसेज XYZ व्हिच आई मॉड्यूलेटेड, आई सेंट थ्रू द मॉड्यूलेटर. डीमॉड्यूलेटर का काम होगा इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आप मैसेज एक्सट्रैक्ट करना कि एक्चुअल मैसेज क्या था. ठीक है जी. सो ये ट्रांसमीटर पे ही डिसाइड होता है. सो ट्रांसमीटर के अंदर फर्दर जो होगी सिग्नल प्रोसेसिंग भी होगी. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन, ये सारी चीजें हमारे ट्रांसमीटर के अंदर ही होती है. नाउ द चैनल, अगर आप ब्लॉक डायग्राम में ध्यान दें, ठीक है, चैनल के अंदर ही हमने नॉइज को बनाया हुआ है, क्योंकि ये चैनल ही है जहां पे मैक्सिममली आपके नॉइज जो है इफेक्ट करती है. क्योंकि आपका जो ट्रांसमीटर है उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ सिस्टम लगाया होगा नॉइज कैंसिलेशन के लिए, या अगर नॉइज आएगी उसको प्यूरिफाई करने के लिए. लेकिन अगर आप 100 मीटर की वायर है या 1000 मीटर की डिस्टेंस है फॉर अ सिग्नल टू ट्रैवल थ्रू एयर, इन बोथ द केसेस नॉइज कैन इंटरफेयर. अब इस नॉइज की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक तो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज, बाहर से जो नॉइज आ रही है आउट फ्रॉम द स्पेस, वो कभी सिग्नल्स को इफेक्ट कर सकती है. तो इसीलिए हमें अपने सिग्नल को बहुत इम्यून बनाना पड़ता है कि कोई नॉइज इसको इफेक्ट नहीं करे. ठीक. अनदर टाइप ऑफ नॉइज कैन बी क्रॉस टॉक. अगर दो वायर्स बहुत क्लोजली चल रही है, दो वायर्स बहुत क्लोजली चल रही है इन सम फिजिकल मीडियम, क्रॉस टॉक हो गया, इसका सिग्नल उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है या इसका सिग्नल उसको डिस्टर्ब करता है. सो क्रॉस टॉक, जिस तरह क्लास में अगर दो बच्चे क्रॉस टॉक कर रहे होते हैं तो क्लास गेट्स डिस्टर्ब, द ओरिजिनल मैसेज गेट्स डिस्टर्ब. लाइकवाइज व्हेन टू वायर्स आर वेरी क्लोज, दिस क्रॉस टॉक कैन अफेक्ट द सिग्नल क्वालिटी. ठीक है, सो बट दिस विल मोस्टली हैपन इन द चैनल. चैनल में ही हमारा मेन मसला हो जाता है. अच्छा, अब अगर हमें अब चैनल की बैंडविड्थ अगर हम ज्यादा रखते हैं तो इसका मतलब हमारी सिग्नल कैपेसिटी ट्रांसमिट करने की बढ़ जाएगी. अगर चैनल की बैंडविड्थ है कम तो ऑब्वियसली सिग्नल ट्रांसमिट करने की भी कैपेसिटी कम हो जाएगी. भले सिस्टम कितना भी पावरफुल हो, बोटलनेक इज योर चैनल. आपने सिस्टम को बहुत जबरदस्त बनाया, एट अ टाइम 10-10, 20-20 सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन चैनल ऐसी है कि वो एट अ टाइम बस एक सिग्नल को जाने दे रहा है और वो भी 10-10 सेकंड में एक. तो आपके 10 सिग्नल्स रेडी होके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. सो इट इज द चैनल वेयर वी हैव टू एक्चुअली वर्क अपॉन एंड वी हैव टू मेक दिस एफिशिएंट. तो चैनल के फर्दर यहाँ उसको कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया. इसके भी टाइप्स हम देखेंगे आगे, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड वायर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. ठीक. तो फिर रहा आपका रिसीवर, इसकी मेन फंक्शन होगी टू रिप्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल, जो कहाँ से आई है आपकी चैनल में से होके हम इसमें कर रहे हैं वायर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है. The reproduction of audio signal is accomplished by a process known as demodulation or detection. अगर ये wireless केस हुआ तो तब ये होगा इसमें possible. तो destination is the final source. जिस तरह था एक बंदा था या एक कंप्यूटर था, इस तरह destination आपका final target होगा, which can be a loudspeaker, which can be a display, LCD display on the main board, and etc.
ना हो गया एक। ये आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है हमारी पहले में, ये बनानी है, इसको बना लीजिए प्लीज जल्दी से। ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। जल्दी से, थोड़ा जल्दी, बॉक्स से बनाने हैं 6-7। हर बॉक्स में लिखना है क्या क्या है। इंफॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर और इंफॉर्मेशन और आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद अगर एक और ब्लॉक जोड़ेंगे वो होगा डेस्टिनेशन। ठीक है, आउटपुट बोलो तो जल्दी से, बात कर बना क्या है कॉपी से ना से, कॉपी से ना से। चलो देखो, इससे एक लेसन भी मिलता है अलग से। आयरनेस में आसन क्लासेस जितने बराबर से आसन इंटरेस्ट गए आप सच्ची आ है ना। सर मैंने बनाया था बैलेंस और तो सो गई। किधर इसमें सो में नंबर कुछ और सर पहले बस में सोती थी, गाड़ी सी सो गई, फिर बैठ गई। आज ही गाड़ी की सीज हो गई, सर इंश्योरेंस की था तो पोल्यूशन। सीज ही हो गया। चाल आने दीजिए हम, सर चाल आने बज जाए। हमारे में बड़ी सीरीज इंदा tough times in life come and go. अब गाड़ी कहाँ पे है? जी सर। गाड़ी कहाँ पे इस टाइम? सर वो यहाँ पे हाईवे पे चढ़ते हो। चलो ओके। The next one is the block diagram of a wireless communication system. आप देखिए इसमें आप हालांकि इसमें बहुत सारे एडिशनल ब्लॉक्स है, लेकिन आप इनको इग्नोर करके आप वही डायग्राम बना सकते हैं। आइजो कोड प्लीज। इस डायग्राम में यहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा, ये 3 और यहाँ पे भी ये 3 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा है, लेकिन आप इनको इग्नोर करके यू कैन मेक द सेम डायग्राम। बट यस 1 2 3 4 ये 4 चीजें उस डायग्राम में ऐड करनी है। वहां पे चैनल जहां पे कनेक्टेड थी ना इससे, वो जो लास्ट ब्लॉक था ये वाला, ये जो चैनल वाला, ये तोड़ के यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगाना है, मॉड्यूलेटर के बाद एक एंटीना लगानी है, और रिसीवर साइड से एक एंटीना लगानी है, एंटीना के बाद एक डीमॉड्यूलेटर लगाना है। वही ये डायग्राम, तो डायग्राम सेम रहेगी। तो ये एंटीना ट्रांसमीटर साइड की एंटीना, ये रिसीवर साइड की, बाकी डायग्राम के सेम। ये बेसिकली एक डिजिटल सिस्टम की डायग्राम है, जहाँ पे एनकोडर है, आपका क्वांटाइजर है, या and then bits to symbol converter. So this will be a little bit complex for you to go as of now. Now types of media. Next heading, straight over. Types of media are cable. आज ये लास्ट लेक्चर में फाइनली हम तक पहुंचे। इस फाइनली वो दिन आ ही गया जब आखिरी क्लास है। तो types of cables or media. Cable will be classified as टाइप्स ऑफ केबल्स या टाइप्स ऑफ मीडिया। आप लिखिए। पहला तो खैर हमारा था वायरलेस, वो भी एक मीडियम है, लेकिन अब मैं यहाँ पे खाली वायर्ड की ही बात कर रहा हूँ। तो वायर्ड में हमारे पास 2-3 टाइप्स आ गए। पहला है ट्विस्टेड पेयर, इसको लिख लीजिए प्लीज। टाइप्स ऑफ केबल्स, ट्विस्टेड पेयर, सर ये हम नहीं पढ़ेंगे सर, छोड़िए। कोएक्शियल, ऑप्टिकल फाइबर। आप पढ़िए फिर कोई बात नहीं, मुझे लेकिन कवर करना जरूरी है। आप नमाज जल्दी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के लिए बेहतर है। यहाँ अंदर मस्जिद में सर नमाज क्लास होगी।
So I'll go very briefly. I'll share this also with you, but just to give you an idea, a twisted pair cable looks like this. तो ऐसे यार सो टेलीफोन तार ऐसा सब बोर्ड से एक पर बोले. So twisted pair cable कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन इसके भी अब दो टाइप्स हैं, अनशील्डेड और शील्डेड. मतलब अगर आप एडिशनली इस पे एक शील्ड लगाते हैं, शील्ड का काम क्या होगा? जो eyes on board please. The significance of twisting is that it reduces or nullifies the influences such as noise, crosstalk वगैरह वगैरह. अब ट्विस्टेड की भी दो टाइप, शील्डेड और अनशील्डेड. शील्डेड का मतलब ये होता है इसमें एक एडिशनल शील्ड लगा हुआ होता है to reduce the interference of external agencies further. ये कॉस्टली होगी डेफिनेटली अनशील्डेड से. ठीक है, तो शील्डेड वायर एक एडवांटेज ही आपको देगी. शील्डेड वायर की एडवांटेज होगी ऑब्वियसली easy installation, higher capacity as compared to UTP unshielded cables. ठीक है, okay, you can just read these. I'll share this with you. अब unshielded twisted pair जो है, they don't have additional shield like mesh या aluminium foil. आपने देखा होगा कुछ में होता है, तो इनको further categories में divide किया जाता है based upon their speed. ठीक, again the purpose and this and that you will read this. This is not a big task. Second type, coaxial cables. आपकी coaxial cables का जो स्टैंडर्ड आप देखते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, केबल तारस मोड आसन अबर में आसन, हाँ, सेंट्रल एक कंडक्टर होता है, सेंट्रल कंडक्टर के बाद एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, फिर आउटर कंडक्टर या मेश होगा, एंड फाइनली आपका जैकेट होगा, प्लास्टिक जैकेट. सो इसमें सेंट्रल कंडक्टर होता है, मेन कंडक्टर, और जो मेश होता है वो चाहे ग्राउंड का काम करता है या बाकी जो सिग्नल वगैरह जाएगा वो किससे जाएगा? आपकी मेन वायर से ही. ठीक, सो कोएक्सियल जो आपका एक्सिस है उस पे आपका कंडक्टर चलता है बिल्कुल सेंटर में. ठीक, इसकी भी एडवांटेज है, एनालॉग और डिजिटल में दोनों में यूज की जाती है. इसकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा होती है. ठीक, so it is used in broadband, high-speed computer data buses as we see, and cables in TV and all that. The third important one, the most important way or medium of connecting between the two systems is optical fiber cable. Optical fiber cable को भी अगर आपने देखा होगा तो your OFC is a very thin strand. You know how जो होता है ना वो झाड़ू जिससे साफ कर दिया सरफेस हाई वाई खाना थोड़ा सा ऐसे निक स्ट्रैंड्स से जैसा प्लास्टिक स्ट्रैंड्स कुछ वैसी ही होती है आपकी OFC की केबल. उतना ही थिन स्ट्रैंड होता है, लेकिन ये हॉलो होता है. हॉलो जब ये होता है तो इसके अंदर सिग्नल भी इस तरह से ट्रैवल करता है. The basic phenomena that governs the traversal, here is the right point. The basic phenomena that governs the transfer of signal through total internal reflection. Total internal reflection, TIR. The basic TIR is total internal reflection. TIR is responsible for travel of signals. TIR, आप लिखिए TIR heading. TIR stands for total internal reflection. Total internal reflection. I leave this part to you also. इस पे आप थोड़ा सा नोट ऐड कीजिएगा total internal reflection क्या होता है. But I will just give you an idea. Total internal reflection takes place inside an optical fiber, which makes the signal to travel through the fiber. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे आपकी जो ये वेव होती है, रे ऑफ लाइट होती है, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, रे ऑफ लाइट होती है, ये इस सरफेस को पार नहीं करती, ये रिफ्लेक्ट होके आती है. द फिनोमेना ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर और थ्रू एनी मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनली ये रिफ्लेक्ट होके आगे चलती है. ठीक है, इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि जो एंगल जहां जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है मीडियम को, दिस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, है ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल.
एनीवे बट क्रिटिकल एंगल वहां पे जो है उसके क्रिटिकल को मीट करके तभी जाके आपका टोटल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। सो दैट इंटरनल एंगल विल बी। अच्छा, इसमें लेकिन अब दो टाइप से, सिंगल मोड, अगर आप एक ही सिग्नल भेज रहे हैं, मतलब अगर आपके फाइबर की एंगल मोड भेज, ठीक क्या कराएंगे, अगर आप एक ही सिग्नल को भेज रहे हैं थ्रू योर फाइबर तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप मल्टीपल सिग्नल्स भेज रहे हैं थ्रू योर फाइबर इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी मोड। ठीक है, सो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके फाइबर की कैपेबिलिटी पे, ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। सो इसके पार्ट्स है कोर, जो मेन कोर होता है ऑप्टिकल फाइबर का, देन क्लैडिंग, क्लैडिंग आपका ये जो एक्सटर्नल जैकेट है इसका, ये क्लैडिंग है, एंड देन द ओवरऑल केसिंग कैन बी ऑप्शन फर्दर, इसको एक केस में कवर किया जाता है। सिंगल मोड, मल्टी मोड ये चीज है। सिंगल मोड allows only one mode of the light to be transmitted through the core, which makes for higher bandwidth. ठीक, सिंगल मोड फास्टर होते हैं, maybe cheaper also, while as multi mode case may have a large core diameter, क्योंकि आप इसको बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रैवर्स करना तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगा, एंड उसमें हम मटेरियल की ग्रेडिंग करनी पड़ती है सो दैट एक सिग्नल एक लेयर पे होके रिफ्लेक्ट आता है वापस, दूसरा सिग्नल थोड़ा डीप जाता है वो उधर से रिफ्लेक्ट, तीसरा सिग्नल उससे डीप जाता है, मतलब वो समझो एक सबसे शीशा होता है या सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तो मल्टी मोड फाइबर के अंदर ग्रेडिंग भी की जाती है सो दैट एक लेयर से होके रिफ्लेक्ट होके एक सिग्नल आया और दूसरा सिग्नल थोड़ा पेनिट्रेट होके अंदर से रिफ्लेक्ट होके आता है। सो दैट इज बाय द डिफरेंट ग्रेडिंग वी यूज। एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ, तो स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास जियो फाइबर एग्जांपल है, बीएसएनएल का भी फाइबर एग्जांपल है, एयरटेल फाइबर भी एक एग्जांपल है, क्यों एक ही मार्केट में कह रहे थे यूज करते हैं। So these fibers have definitely increased the speed greatly. Remember those days हमारे पास वो 2 वायर केबल होती थी और ब्रॉडबैंड में भी शायद आप ऐसा नेट यूज करते थे कि नहीं, लेकिन हम उस टाइम पहले उसमें डायल लोड करना पड़ता था, दैट इज वेट फॉर दैट, फिर उसकी स्पीड 3 kbps, हां देखो ना 3 kbps 10 kbps kbps की स्पीड हुआ करती थी, तो पेज पहले आधा आता था, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, दैट वाज लाइफ। We have to finish these topics just like this. I am begging you to just listen these. नहीं assignment कुछ नहीं देना है, जो है सो है इतना ही। तो सुनिए जरा, अब हमने समझा कि वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, लेकिन वायरलेस को, अब वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए हमने मीडियम समझ लिया, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए मीडियम समझने से पहले हमें समझना है मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ converting your, or you can say modulation is a process of converting your signal, the message signal, into a signal which is translated to a higher frequency level and then transmitted. Or you can say the process by which the data or information is converted into an electrical or digital signal for transferring over a medium, which is obviously air. Generally modulation wireless के लिए ही यूज करते हैं, पर कभी हम वायर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट मॉड्यूलेशन यू मोस्टली टॉक अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द ट्रांसमिटर सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऐड फर्दर डिटेल्स ऑन दिस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, ये एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए। So then the most important topic, इस पे बहुत ज़्यादा emphasis देने की जरूरत है, मैंने उतनी emphasis नहीं दी है, but emphasize this also. Types of modulation. Broadly अगर हम कहें analog modulation, जिसमें हमारे signals जो होंगे वो analog होंगे सारे, और specifically the carrier. Then digital modulation. So analog modulation uses continuously varying sine और cosine wave as a carrier. देखिए ये हमारा message signal होगा और समझिए ये कैरियर वेव, कैरियर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, कैरियर क्यों बोलता है इसको, कुछ बड़ी खसायत नफस, ये खसायत नफस विशेष वादनावन एक जगह पे भेज है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस इज योर मैसेज सिग्नल डिनोटेड बाय से m of t, this is your carrier signal denoted by c of t. The carrier will help the message signal to be transmitted from one region to another, that's why the name
carrier. It carries the message signal inside it. Now, when you demodulate this signal, the modulator signal, the main function of the demodulator would be to remove this part and extract the message only. ठीक है? So now this and analog modulation we use continuous varying sine waves, the message signal or data that modulates the message signal or data. So इसके अंदर फर्दर जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. इसको आप भूल जाइए, अलबत्ता इन दो को आप देख लीजिएगा अपनी जगह पे. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जस्ट मैं बता रहा हूँ अभी, यहाँ पे स्लाइड्स पे नहीं है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन where the amplitude of the carrier wave is varied linearly with respect to the amplitude of the carrier wave. I will repeat. Amplitude modulation is that type of modulation where AM modulation. Amplitude modulation is that type of modulation where the amplitude of carrier is varied linearly with respect to amplitude of M of t. Okay? इसके further subtypes हैं DSB SC, SSB SC and VSB. I would request you to add one line definition for all of these. ठीक है? ये नोट डाउन अलग कर लीजिए. इसका फुल फॉर्म है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एंड वेस्टेजल साइड बैंड. ठीक है? तो ये हो गया हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन. रादर एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात अगर करें तो फिर AM भी एक टाइप है. इसका दूसरा नाम है DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर. तो एनालॉग के यहाँ पे ब्रॉडली आ गए 1 2 3 4. इसके फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं लेकिन उनको हम टच नहीं करेंगे. पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट. देन देयर इज डिजिटल मॉड्यूलेशन वेयर अच्छा ये तो हो गया हमारा AM. दिस इज आवर AM. दूसरा हमारा है FM. FM इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अब इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर, हियर आइज ऑन बोर्ड प्लीज, यहां पे amplitude of carrier wave is varied linearly with respect to the amplitude of M of t. यहां पे frequency of C of t, that is the carrier, is varied linearly with respect to amplitude of message signal. So this part remains same. Amplitude of message signal ही vary करता है. अगर amplitude को vary कर रहा है वो तो amplitude modulation बनेगा, अगर frequency को vary कर रहा है तो frequency modulation बनेगा. इसी तरह अगर आपका phase modulation है, उसमें अगर आपके phase को vary कर रहा है आपके message signal, this will again remain same, this part. लेकिन वहां पे क्या vary होगा? phase vary होगा. समझ आई बात? तीनों केसेस में मैसेज सिग्नल ही डिटरमाइन करता है कि कितना वैरी होना है, कितना कम है ज्यादा. लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या वैरी होगा? किसका? कैरियर का. फेज मॉड्यूलेशन में क्या वैरी होगा? फेज किसका? कैरियर का. एग्जैक्टली राइट. ठीक है, इसको याद रखना है. जिसको याद रहा दैट इज एज सिंपल एज दैट. इनका कॉम्प्लेक्स इज हियर. ठीक है. द थर्ड वन इज पल्स मॉड्यूलेशन. तो यहां पे है पल्स मॉड्यूलेशन which uses pulses of varying amplitude, width or position to encode the message signal. Actually इसका नाम है pulse analog modulation. इसके अंदर 3 आते हैं. PAM, pulse amplitude modulation. ये एक pulse को यूज करता है to modulate the carrier. Sorry, यहाँ पे pulse amplitude modulation में carrier एक pulse train होती है. ठीक है, eyes on board please. हम एक मैसेज सिग्नल यूज करते हैं टू वैरी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सच दैट द रिजल्टेंट सिग्नल मे लुक लाइक दिस.
कुछ समझ आया? मतलब इस m ऑफ t ने, ये आपका m ऑफ t है, ये आपका c ऑफ t है, इस m ऑफ t ने इन पल्सेस के एम्पलीट्यूड को वैरी किया। मतलब यूनिसोस बाय डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड सपोज 1 वोल्ट, या तो बने होगा 2 वोल्ट, या तो 3 वोल्ट 1 वोल्ट, ये बने होगा 3 वोल्ट, या तो 1 वोल्ट, ये बने होगा 1.5, या तो 1 वोल्ट, ये बने होगा लेकिन 0.5। अच्छा समझता ना? जो पल्स ट्रेन है, जो आपका कैरियर है, उसके एम्पलीट्यूड पे असर पड़ रहा है, तो बन गया हमारा पैम। दूसरा है हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, बिकॉज ऑफ हाई एम्पलीट्यूड इसकी पोजीशन में शिफ्ट आएगा। मतलब अगर ये पल्स यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब ये थोड़ा आगे स्टार्ट होगा, अब क्योंकि यहाँ पे पीक है तो ये और आगे जाएगा, सॉरी एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन पोजीशन मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये वाला पल्स क्या आ जाएगा, नजदीक नजदीक, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव ये पार्ट, तो जहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है वहां पे पल्स की पोजीशन दूर जा रही है। समझ आ रहा है ना आपको? यस और नो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स ट्रेन का रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। पल्स पोजीशन में हर एक पल्स की पोजीशन, इसकी पोजीशन यहां पे थी, है ना, यहां पे, लेकिन इसमें एक शिफ्ट आ रहा है, ये x का शिफ्ट आ रहा है यहां पे। सपोज यहां पे आप x डैश का शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज यहां पे जो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो पीक कर रहा है टू वेरी हाई वैल्यू। तीसरा हमारा है इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आपके पल्स तो से इक्विडिस्टेंट रहते हैं, लेकिन उनकी विड्थ बढ़ती जाती है। ये मैंने पॉजिटिव साइकिल के लिए बनाया, ये नेगेटिव साइकिल के लिए। पल्स की विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई। सो दिस इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, इन सारे टाइप्स को आप देख लीजिएगा इन डिटेल, अच्छे से इनको फर्दर ब्रश अप कीजिएगा। ठीक है, so the last topic in the last slide, hopefully, yes, this is the last slide. Types of communication systems, क्योंकि हमने देखे मेथड्स जो है वो एनालॉग डिजिटल है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारे पास होंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्त, क्या सुनती है? क्योंकि सुना दोस्त है, मैंने कहा ठीक है, आपका दोस्त बिल्कुल बोल रहे हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम सारे एनालॉग डिवाइस हम यूज करेंगे, एनालॉग सिग्नल्स हमारे होंगे, whereas digital communication systems will use digital components to perform the required transmission and reception of signals. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम एक अलग ही दुनिया है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज होगा, तो ये मीडियम से ही इनका नाम पड़ा है। ठीक है जी, I'll most likely share these things with you, but make sure that you cover every topic touch today, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, because इससे भी obviously those 10 marks most likely आना ही आना है, या 10, 7, 6 कुछ ना कुछ तो obviously आएगा ही। ठीक है, चलिए जी, that will stop for today and wish you best of luck for your future ahead.